نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ میم۔ الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 64 اینڈ 65 دیکھیں گے، بہت ہی ایزی اور سمپل آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب لوگ پلیز دیکھتے ہوئے آنسرز بولتے جائیں۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعد بعد ذالک اس کے فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل فاضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت لکنتم البتہ ہوتے من تم الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ الحمدللہ۔ چلیں، ثم پھر، اوکے، یہ ورڈ تو بار بار ریپیٹیشن ہے تو نیا ورڈ نہیں ہے۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، ٹھیک ہے؟ سب لوگ پلیز اپنا مائک آف کر لیں ابھی۔ تولیتم پھر گئے تم من بعدی بعد ذالکا اس سے، اس کے بعد تم نے کیا کیا ہے؟ رافیہ پلیز مائک آف کریں۔ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعدی بعد ذالکا اس کے، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فا لولا، لو مطلب اگر، فا پس تو، لو اگر، لا نہیں ہوتا، فضل مطلب فضل، اللہ ہی اللہ کا۔ فضل کہتے ہیں احسان کو، کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ کسی کو جو حق ہے اس سے زیادہ دینا فضل کہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، جب ہم لوگ کہتے ہیں نا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، مطلب جب کوئی کہتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا نالج ہے، آپ کو اتنا اچھا ہے، یا آپ کو اتنا اچھا آتا ہے، یہ سب، اینی ون پریزز یو، اینی ون بوسٹ یو، مطلب کیا کہتے ہیں کہ یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ، مطلب ایکچوئل لوگوں سے کمپیئر کرا گیا تو یو ڈوئنگ یور بیسٹ، یو آر ڈوئنگ سو مچ، یو ہیو سو مچ انٹیلیجنس، اینی تھنگ لائک دیٹ، always use the word ھذا من فضل ربی، یہ میرا رب کا فضل ہے، جو حق سے مجھے جتنا چاہیے نا اس سے زیادہ بڑھ کے دینے والا وہ ہے، تو اس کا ہی یہ اٹ از بیکاز آف ہم۔ سو یہاں پہ جو ہے انسان کا تکبر، اس کا میں پنا، اس کا یہ بولتے ہیں ایگو یا پراؤڈنس کچھ نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتا ہے، saying that all میں جو ہوں it is because of اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو فضل کسے کہتے ہیں؟ احسان کو کہتے ہیں، کسی کے حق سے زیادہ دینے کو فضل کہتے ہیں۔ کسی ایکسٹرا، the word we use the word extra, right؟ تو وہ جو ایکسٹرا ہے that is the فضل، it is actually a favor۔ when we say I'm doing a favor for you، مطلب we are doing a favor، مطلب حق سے زیادہ دینا is what as فضل، اوکے؟ فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہو گئے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیت ہے اس سے پہلے جو ہم لوگ we were talking، آیت نمبر 63 میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوہ طور پہاڑ ان پر، کس پر؟ بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے واقعہ۔ کوہ طور پہاڑ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سروں پر رکھ کر، مطلب کمپلیٹلی نہیں رکھتے، اوپر رکھ کر انہیں ڈرایا جاتا ہے، ان سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ جو چیز میں تمہیں دیا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو۔ تو جو چیز میں دیا ہوں وہ کیا تھا؟ وہ کلام تھا، مطلب اٹ از ایکچولی اباؤٹ تورات۔ تورات کو مضبوطی سے
से थाम लो। थामना का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली उसको मजबूती से थामेंगे, थामने का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू होल्ड इट, एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू गो फॉर अमली पर्पस ऑल्सो। उसमें जो अहकामात है उस पे मजबूती से आप जमे रहेंगे, मजबूती से आप हर अहकाम को मानेंगे। तो ये जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पक्का अहद लेते हैं तो वो सब लोग मान जाते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इट हैपेंस। उसके बाद इन बनी इसराइल का रवैया देखे, फिर क्या करते हैं, सुम्मा तवल्लैता, फिर गए तुम। टेकिंग द, देखे यहाँ पे जो है बनी इसराइल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो वादा लेते हैं वही है ये आयत नंबर 63, वइज़ अखज़ना, और लिया हमने मीसाक़ा को, मीसाक मतलब बांधने को कहते हैं पक्का अहद, वरफ़अना मतलब और ऊंचा कर दिया, मतलब ऊपर लाया, फ़ौक़हुम तुम्हारे ऊपर, अत्तूर को, पहाड़ को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए थे। खुज़ू मा आतैना, ओके, जो मतलब पकड़ लो जो चीज मैं तुम्हें दिया हूँ, किसके साथ, बेक़ुव्वतिन, साथ कुव्वत के साथ पकड़ो, वज़्कुरू, और याद करो, माँ जो फीही लअल्लकुम तत्तकुन, और जो भी मैं दिया हूँ उसको याद करो ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। सो दिस इज आयत नंबर 63। अभी यहाँ पे 63 में 64 में होता क्या है, सुम्मा फिर तवल्लैतुम मिन बाद ज़ालिक, सुम्मा फिर तवल्लैतुम, तुमने मुंह फेर लिया है। कब मुंह फेर लिया, किसके बाद, बाद ज़ालिक मतलब उस अहद के बाद, उस कोहितूर पहाड़ को सर पे मुसल्लत करने के बाद उन्होंने पक्का वादा लिया है ना, वादा किया, वादा के बाद वादा तोड़ देते हैं, मुंह फेर देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, तो वादा खिलाफी करते हैं, वो अपने वादे को भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि सुम्मा, जब तुमने अपना मुंह फेर दिए है, मतलब वादा को भूल गए थे, तो अल्लाह ताला क्या किए थे, फलौला फद्लुल्लाही, अल्लाह ताला फिर देखिए, अल्लाह रहमान है, रहीम है, बार बार मुसलसल माफ करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। तो क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, फलौला, तो कहा हमने, फद्लुल्लाही, अल्लाह का फजल हो, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और रहमत हो, लकुम, तुम्हारे, मिनल खासिरीन, तुम खसारा में हो जा। अगरचे अल्लाह का फजल और उसकी रहमत अगर तुम पर ना हो तो तुम तो क्या बन जाओगे, तुम तो खसारा पाने वाले बन जाओगे, यू विल बी द लूजर्स, लूजर्स में शुमार हो जाएंगे। ओके, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द आयत। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता यह है कि इसमें बनी इसराइल को नदामत की जा रही है। नदामत इज एक्चुअली मेकिंग देम फील गिल्टी, बार बार उन्हें दिखाया, मतलब मेकिंग देम फील गिल्टी कि देखो तुमने क्या किया है, पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा करे हैं, फिर उसके बाद वादा तोड़े हैं, वादा तोड़ने के बाद भी अल्लाह का रहम देखें, अल्लाह अगेन तुम पे है ना, तुम्हें माफ करता है, अगेन मौका दे रहा है, तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए मौका दे रहा है, और पैगंबरों को भेजा है, ही इज फॉरगिविंग यू पीपल, तो एंड ही इज गिविंग यू मोर एंड मोर पैगंबर इन योर नस्ल, जहाँ पे आपको है ना हिदायत दे, आपको सिखाए करे, मोहल्लत देता जा रहा है। ही डिडंट पनिश देम, ही डिडंट पनिश दीज पीपल, जो लोग है ना वादा खिलाफी किए हैं तो अल्लाह ताला पनिश नहीं किए थे। अभी देखिए, अल्लाह ताला माफ करता है, लोगों को माफ करता है, गलती जब करते हैं फिर वो इंसान वापस अल्लाह के पास चले जाता है कि यार अब मुझे माफ कर, मैंने ये गलती की है। तो ये चीज जो है वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली कि या अल्लाह, जो गलती मैं की हूँ उसको तूने माफ कर दिया है, एक नई जिंदगी वी हैव टू लीड अ लाइफ। ऐसा नहीं है कि वही बुराई में ही जाए, वही गलतियां दोहराए, वी शुड नॉट डू दैट वन, वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ, वी नीड टू बी अ न्यू बीइंग, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो हम जनरली हमारे लिए इस आयत से द लेसन्स दैट वी हैव टू टेक इज दैट फर्स्ट चीज इज व्हाट, जब वादा करते हैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट ब्रेक द प्रॉमिस। खासकर यहाँ पे जो है वादा जो किए हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हैं, ये वादा करने के बाद वादा तोड़ना ये बहुत बड़ी गलती है, पहली चीज। सो हमें वादे जब करते हैं तो वादे नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब आप वादा करते हैं सोच समझ के वादा करें। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग, यहाँ पे जो है अल्लाह का वादा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अल्लाह वादा। जनरल दुनिया में जब हम लोग वादा करते हैं, व्हेन यू फील दैट यू कैन फिनिश ऑफ, यू कैन डू दैट वादा, देन ओनली
you say as yes inshallah I'll do it, वादा करें, but otherwise don't do it. And most of the time what happens खास करके the word inshallah is being used in a very wrong sense. प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि इंशाल्लाह का मीनिंग जो है उसका मीनिंग समझे, उसके इम्पोर्टेंस समझे, एंड देन उसके बाद यूज करें. लाइक इंशाअल्लाह, इन मतलब अगर, शाह मतलब चाहे, अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो होगा. बट वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आपकी नीयत भी उसमें शामिल होना जरूरी है. अल्लाह चाहे तो होगा, बट आपकी नीयत भी चाहिए ना, आपकी नीयत रहना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से दैट आई नो आई एम गोइंग टू राइट डाउन एग्जाम टुमारो, तो पहली चीज क्या है, मेरी नीयत है कि ना इंशाल्लाह मेरी नीयत रहेगी कि मैं करना चाहती हूँ, मतलब मैं इरादा कर दी हूँ दिल में, मैं इरादा करूंगी. और मैं इरादा, वो मेरा इरादा कब पूरा होगा, अगर अल्लाह चाहा तो. मेरा इरादा तभी पूरा होगा जब अल्लाह चाहा तो दिल में इरादा करके देन उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह चाहा तो जरूर होगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ओवर हियर राइट नाउ ओवर हियर इन ओमान. अब इमीडिएटली आई गेट अ कॉल फ्रॉम समवेयर फ्रॉम जर्मनी. वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेज दैट फरहीन व्हाई डोंट यू कम टू माय होम, तुम आ जाओ मेरे घर, कल आ जाओ तो मेरे घर. इफ एट ऑल शी सेज आई से हाँ इंशाल्लाह. हाय ना अल्लाह, क्या बकवास है, क्या पागल लड़की है, क्या मैं जा सकती हूँ, क्या मैं, इट इज पॉसिबल फॉर, मुझे मेरा इरादा नहीं है एंड आई डोंट वांट टू गो डू, मुझे जाना ही नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है, ना मुझे हॉलीडेज मिलते हैं, या मुझे लीव है, ना इंटरेस्ट है, या मुझे थॉट है, मुझे कुछ है ही नहीं. लाइक नथिंग इज देयर इन माय माइंड, बट आई एम जस्ट टेलिंग हर इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे. दिस इज रॉन्ग. तो इसमें क्या है, आपका इरादा क्या है, आपका इरादा है ही नहीं जाने का. For you it is impossible, for you it is impossible, but just for the name sake वो झूठ के जैसा हो जाता है कि हाँ ठीक है अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह. मतलब ये क्या है, we are not respecting the word for the word इंशाल्लाह. For example, कल आपका एग्जाम है, 100% आपको एग्जाम है, अपॉइंटमेंट है, आपका एग्जाम है, जो एग्जाम आपका 9 से 12 तक एग्जाम है. And someone calls, your neighbor doesn't know that 12 बजे आपका एग्जाम है. Your neighbor calls you for a party कि घर पे है ना दावत है, आप प्लीज आ पाए. और खासकर वो दावत जो आपको बुला रहे हैं, इट इज एट 10 o'clock. 10 o'clock एक स्मॉल गैदरिंग है, एक स्मॉल फंक्शन है, आप 10 बजे आए तो आप करना क्या चाहिए, हाँ इंशाल्लाह देखेंगे. यू शुड नॉट से दैट. मतलब आपका इरादा, आपको अलग जगह अपॉइंटमेंट है, आपका एग्जाम है कल, आपका एग्जाम है और आपको पता है, यू नो, आपको श्योर है कि 9 से 12 o'clock तक मेरा एग्जाम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी, 100% आई कैन नॉट कम, सो आई विल नॉट से दैट हाँ इंशाल्लाह देखेंगे. तो है ना, ये क्या होगा, झूठ में शुमार हो जाएगा. आपका इरादा नहीं है. दूसरी चीज, यू आर कमिटेड समवेयर एल्स. तीसरी चीज इज व्हाट, ना आपको मालूम है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल. अगर अल्लाह चाहा तो होगा, बट आपका इरादा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मुझे कल एग्जाम है, मैं एग्जाम छोड़ के मैं आपके घर में दावत कैसे आऊंगी. तो आप क्या कहेंगे, देखिए आंटी मेरा दावत है, या इफ यू डू मेरा एग्जाम है, अगर आपका एग्जाम आप बोलना नहीं चाहते, आई हैव सम अदर कमिटमेंट, मेरा कुछ और काम है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि सम अदर डे मैं आपको आके मैं जरूर मिलूंगी, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी सम अदर डे. यहाँ पे वादा नहीं करे कौन सा डे, आप वादा नहीं करे स्पेसिफिक टाइम. यहाँ पे आप कहते हैं कि आपका इरादा भी है, दिल से इरादा करें कि मैं मिलना चाहती हूँ, इरादा करें एंड देन यूज द वर्ड इंशाल्लाह. दैट इज वेरी गुड रादर देन दिल में कुछ इरादा नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, शौक नहीं है, हाँ ठीक है देखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ये चीज झूठ में आ जाता है. दैट मीन्स यू आर मिस यूजिंग द वर्ड इंशाल्लाह. आज के माशरे में जो है इंशाल्लाह इज बीइंग यूज्ड इन अ वेरी रॉन्ग से. हाँ ये इंशाल्लाह बोल रहा, दैट मीन्स इज नॉट गोइंग टू कम. लोग इतना मजाक में ले लिए हैं कि हाँ कल बुला रहे हो कि मैं आऊंगा तुम्हारे घर, मैं आऊंगा. When he says हाँ मैं आऊंगा, उस पे बात भरोसा करते, हाँ इंशाल्लाह देखेंगे, मतलब झूठ. ये तो आने वाला नहीं, इज नॉट, झूठ बोल रहा है. दिस इज द वे दे बिहेव. ठीक है, दीज चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम हमें अवॉइड करना चाहिए दीज थिंग्स. ठीक है, तो जब आपके दिल में इरादा है तो कहें कि इंशाल्लाह मैं आऊंगी, अदरवाइज डोंट यूज द वर्ड इंशाल्लाह अननेसेसरी, बिकॉज यहाँ पे जो है हम लोग अल्लाह को नो शामिल कर रहे हैं.
اللہ سے شامل کرے. وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اور خاص کر یہاں پہ جو ہے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے تو دیٹ از اے پرائم چیز, وی کین ناٹ گو بیونڈ دیٹ ون. اللہ کے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور موقع دیتا ہے. جب ہم غلطی کرتے ہیں, کچھ پرابلم ہو جاتا ہے یا غلطی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے, تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم آئی شوڈ ناٹ ڈو اٹ rather than keeping on going for it. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے ہمیں. نیکسٹ آیت دیکھیں, دس از ویری اسمال آیت جو ہم لوگ پڑھے ہیں. نیکسٹ آیت دیکھیں, وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ, اس کا میننگ پڑھتے جائیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان کو جو اوکے اوکے اعتدوا سے نکل گئے منکم تم میں سے فی السبت سب نسبت فی السبت سب ہفتہ کے کے دن دن میں فقلنا تو کہا تو کہا ہم نے لکم ان سے ان سے کونو ہو ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین. ذلیل و خوار. اوکے, الحمدللہ. سب لوگ مائک آف کریں. اوکے, اب یہاں پہ دیکھیں, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, و اور لا جو ہے تاکید کے لیے یوز کرتے ہیں, اور قد بھی تاکید کے لیے, مطلب تاکید بتاکید, 2 ٹائم تاکید دیا جا رہا ہے, مطلب ضرور بضرور, ڈیفینیٹلی. عالم تم جان لیا تم نے, الذی جان لیا, عالم تم مطلب عین لام میم جان لیا. اب یہاں پہ جو علم ہے, علم الیقین ہے, ڈیفینیٹلی تم لوگ جان لیے ہیں, الذین وہ جو لوگ اوکے حد سے بڑھ گئے ہیں, منکم تم میں سے, فی السبت. یہ اب یہاں پہ دیکھیں جملہ جو ہے اٹ از ایکچولی ٹیلنگ سم ون ایلس. فی سبتی مطلب ہفتے کے دن, وقلنا اور کہا ہم نے, لہم ان سے, کونو ہو جاؤ, قدرتن بندر, خاسین ذلیل و خوار ہو کر. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, مطلب یہ جو ہے اوکے یہاں پہ جو ہے تاریخ کا ایک اور پہلو یاد کروایا جا رہا ہے. مطلب یہ جو سورہ ہے مدینے میں نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو مدینے میں اٹ از گوئنگ آن. اب مدینے کے جو بنی اسرائیل ہے, مدینے کے جو یہود ہے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد دلا رہے کہ دیکھیں اس دور کے مدینے کے بنی اسرائیل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, ان کو ان کے باپ داداؤں کے بارے میں پاسٹ ماضی کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے باپ دادا لوگوں کے بارے میں تمہیں پتا ہے کیا کیے ہیں ان لوگ, تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ کیا کیے ہیں اور انہوں کس طرح نافرمانی کیے ہیں اور ان کو کس طرح پنشمنٹ دیا گیا تھا. اوکے, تو جس کے ہفتے کے دن ان لوگ, واٹ از اے میجر تھیم اباؤٹ دس, ہفتے کے دن ان لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 163 میں اس کی تفصیل ان ڈیٹیل آتا ہے. اوکے, بیفور گوئنگ لیٹ اس نو اباؤٹ دا واقعہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جمعہ کا دن خاص ہے مسلمانوں کے لیے, ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے خاص ہے, اور اسی طرح سنڈے کے دن فار کرسچنس خاص ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کیے ہیں, ان کے لیے پابندی کر دی گئی ہے کہ ہفتے کے دن وہ کوئی بھی کام نہیں کریں گے. دیر از اے کنڈیشن دیٹ از بین پٹ فار دیم فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہفتے کے دن آپ کچھ بھی کام نہیں کریں گے, انہیں ہر کام کاج سے چھٹی مل جاتی ہے, اس دن یو شوڈ ناٹ ڈو. لیکن یہ جو بنی اسرائیل لوگ تھے نا, یہ بہت دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے, ان کے لیے جو ہے کام کاروبار ہمیشہ رہنا ضروری ہے, بیکاز اٹ ٹاکس اباؤٹ منی. ان کو کام کاروبار بند کرنا مطلب مشکل چیز ہے.
ओके, एक दिन के लिए काम कारोबार बंद करना उनके लिए मुश्किल चीज है। अभी देखें होता क्या है, अल्लाह ने उन्हें आजमाया, किस चीज से आजमाया? अल्लाह ने बनी इसराइल को, एक बस्ती है, कौन सी प्लेस है वो, बनी इसराइल की एक बस्ती है जो समुद्र के किनारे में रहती है। उनका काम क्या था? मछलियां पकड़ना। तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन मछलियां मत पकड़ो, लेकिन इन्होंने किया क्या है कि हफ्ते के दिन अल्लाह की आजमाइश क्या है पता है? हफ्ते के दिन मछलियां खूब खूब ऊपर आते हैं, मतलब दे कुड सी सो मेनी फिशेस, फिशरमैन लव्स फिशेस राइट, बिकॉज बिजनेस बढ़ाने के लिए, जो भी है उसके फायदे के लिए, तो फिशेस इतनी ज्यादा ऊपर ऊपर आते हैं, वो देखकर वो हैरान हो जाता है, और वो देखकर इतना ये होता है कि तड़पता है, ये ही आजमाइश है। लेकिन बाकी के दिन नहीं आते। जिस दिन नहीं बोलते हैं ना, जिस दिन मना करते हैं कोई चीज से, तभी जो चीज हमें ख्वाहिश रहती है वो चीज आ जाती है। यहाँ पे भी वही आजमाइश अल्लाह ताला करते हैं। तो बनी इसराइल का क्या तरीका, इन लोग क्या सोचते हैं, देखें ये लोग क्या करते हैं, हफ्ते के दिन के लिए एक जाल, हफ्ते के दिन पहले, लाइक बिफोर सैटरडे, फ्राइडे नाइट इटसेल्फ एक जाल जैसा बांध देते हैं। जाल इन द सेंस एक्चुअली लाइक समुद्र के बाजू में ही दे विल ट्राई टू पुट अप, मतलब एक क्या बोलते हैं, मिट्टी खोद के रख देते हैं जहाँ पे पानी ऊपर आता है, मतलब मछलियां आते हैं ना, तो वो क्या हो जाए, वो खड्डे में चले जाते हैं, जाल के जैसा है ना, इट गोज एंड ट्रैप्स इन दैट। तो पानी का जो है ना बहाव, मछलियां ज्यादा आते हैं तो उसमें जाके ट्रैप हो जाते हैं। सो दे मेड अ सिस्टम लाइक दिस, बट हफ्ते के दिन कुछ काम नहीं करे। ये पूरा क्या है, ये फ्रीडिंग फ्राइडे के दिन ही उन लोग पूरा ये सेटअप करके रख देते हैं, एंड दे से हफ्ते के दिन। और इतवार के दिन जब वो मछलियां क्या करते हैं, मछलियां संडे के दिन इट इज द बिजनेस फॉर देम, तो जितनी भी मछलियां वो स्टोर्ड हो रहते हैं ना, वो पूरा लेकर अपना काम कर लेते हैं। और वो क्या कहते हैं कि आप जिस तरह बोले अल्लाह, हम लोग है ना मछलियां सैटरडे के दिन हम लोग कुछ काम नहीं किए, वी डिडंट डू एनी वर्क। क्या अल्लाह ताला नहीं जानता जो एक्शन जो लोग करते हैं वो धोखा है? वो एक्चुअली क्या है, हीला साजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर अपनी उम्मत के लिए हीला साजी मना किए हैं। तुम लोग यहूदी की तरह मत हो जाओ जहाँ पे आप लोग हीला करेंगे। तो हीले हमारे लिए करना, वी शुड नॉट डू, मतलब हीला साजा इज नथिंग बट द बहानास, आज हम मुसलमानों में ऐसे भी दीगर आ गए हैं, मतलब दीनदार लोग आ गए हैं जिन्होंने फिक के नाम पे हीला का नाम से बांध लेते हैं। ओके, हीलों का बयान अगर आप देखेंगे, यानी हीलों के बारे में अगर देखेंगे, यहूद को हुक्म दिया गया था कि उनकी औरतें अपने सर के बाल ना ढके, जैसा कि मतलब यहाँ पे क्या आता है कि मुसलमान औरत को भी यही हुक्म दिया था कि अपने सर के बाल क्लोज करें। तो यहूद के औरत ने अपने बाल काट कर सर पर विग लगा दिया था, और दे स्टार्टेड सेइंग दैट वी आर कवरिंग, मतलब हम लोग वी आर कवरिंग आवर हेयर। ये क्या है, हीला है। सो इफ यू जस्ट सी अगर फॉर एग्जांपल बुरखे का, इफ एट ऑल वी से द हुक्म ऑफ बुरखा, बुरखे में जब कहते हैं तो लोग क्या हीला बनाते हैं, नहीं नहीं, हम लोग तो बुरखा नहीं, दिल में हमारा तकवा हाई है, हम लोग दिल से पाक है, साफ है, हम लोग है ना इस तरह करेंगे, हम लोग अपना नजरें नीचे करेंगे, विल डू ऑल दिस थिंग्स, बट पर्दे का जरूरत नहीं है। ये अगेन हीला है। ठीक है, अभी देखिए अगरचे जकात देना है, मोस्टली अभी मुसलमानों में क्या है, इन लोग भी हीला ढूंढते हैं, मतलब दे ट्राई टू एक्ट वेरी स्मार्ट, कि जब जकात देने की बारी आती है, जकात इज अगेन अ पिलर ना, जब जकात देने की बारी आती है तो माँ बेटी क्या करते हैं, जब जकात देना है, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड, जब है ना जकात देने का है ना, तो माँ जो है बेटी को आपस में एक दूसरे का जेवर दे देते हैं। ओके, जकात ना देने के, क्योंकि व्हेन यू गिव सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट टू अदर्स, जकात नहीं रहता उसमें, तो जकात को ये करने के लिए व्हाट दे डू कि आपस में एक दूसरे को दे देते हैं। ये क्या है, ये हीला करते हैं कि माल अल्लाह की राह में खर्च ना करें, मतलब जो जकात है, जकात का पैसा हमें स्पेंड ना करें, गरीबों को देने की जरूरत नहीं रहती है, तो इट इज बेटर तुम्हारा माल मुझे दे दो और मेरा माल तुम ले लो। ओके, अब हमें अल्लाह से वही मिलेगा जो हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। एक्चुअली टू से जितना हम लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, हमें वही मिलता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज्यादा भी मिलता है, बट जहाँ पे धोखा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जो है खाली ही रहेगा, क्योंकि अल्लाह के साथ जो सौदा है वो सबसे बेहतरीन सौदा है, क्योंकि वो ही है मददगार और वो सबसे ज्यादा देने वाला है, और हिसाब किताब में भी हमारा ये बढ़ा देगा वो। That people will don't understand. दुनिया में क्या है, हमें पैसा खर्चा करना ही है, छुपा के रखना है, so these set of things they used to do it.
یہ مسلمان امت کو ہو کیا گیا ہے. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اون سیلف. کیوں ہم پر مسکنت چھائی ہوئی ہے, کیوں مشکلات آ رہی ہے لائف میں؟ سب کے لائف میں کوئی نہ کوئی مشکلات آتی ہے. ایوری ون آر گوئنگ تھرو پرابلمس. وائی ہمارا گزارا کیوں نہیں ہوتا؟ وائی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیڈ اے نارمل ہیپی لائف, پیسفل لائف جو پہلے لوگ کے زمانے کے لوگ کرتے تھے؟ ہم ہر وقت روتے رہتے کیوں ہیں؟ ہم سود میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ دیر آر سو مینی تھنگس وی آر انوالوڈ ان آل